جی وعلیکم السلام آسما جی سر آسما شرازی صاحبہ وہ کل کا جو انٹرویو سنا نہیں چل سکا ٹیلی ویژن پہ. جی سر وہ نہیں چل سکا لیکن بی بی سی اور پاکستان انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت ریوائز کیا ہے. تو اس کے اوپر کافی ہم سب جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے اور سب لوگ ایک بیان ایشو کر رہے ہیں بہت جلد, اور ہم اس کو پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں ٹویٹر اینڈ سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن اگر آپ لیکن اگر آپ کا چینل چلا دیتا تو چل جاتا. جی سر ابھی ہم یہی ابھی جا کے انشاءاللہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو ہم ضرور چلائیں. تھوڑا سا کیمرا کی طرف سے یہ آیا کہ آپ کا چینل بند کر دیا جائے گا, اور بھی بہت سارے ٹرینڈ ابھی جو ہے وہ دیے گئے ہیں. یہ تو آسما پر یہ تو پھر سٹینڈ آپ کو لینا پڑے گا. اگر آپ بھی سمجھتے ہیں جی کہ یہ 70 سالہ تاریخ ہماری بدلنی چاہیے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ پھر تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ آپ سٹینڈ لیں. میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اب جب بدلنے کا وقت آیا ہے, ملک کی تاریخ بدلنے کا وقت آیا ہے, تو پھر میڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی مناسب نہیں. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اب ڈر اتاریں. قوم نے بھی ڈر اتار دیا, آپ بھی اتاریں, اور سب مل کر اپنا اس ملک کو بدلیں, اس کی تاریخ کو بدلیں. ورنہ 70 سالہ تاریخ ہماری تو اسی نے آج یہ دن دکھایا ہے پوری قوم کو. تو اب یہ میرا خیال ہے کہ جب کہ ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹس آ گئے ہیں, اور یہ بالکل تبدیلی بالکل سامنے نظر آتی ہے, تو پھر آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اظہر صاحب کیا حال چال ہے؟ اپنا اظہر جاوید صاحب گرفتار مجھے یہاں سے کرتے ہیں یا وہ لاہور پہنچ کے کرتے ہیں, میں تیار ہوں, ہر ایونچولیٹی کے لیے تیار ہوں. جو میں خود اپنی وائف کو وہاں پہ اس جو ہے وہ ایک اپنا تشویشناک حالت میں چھوڑ کر میں یہاں جب پہنچ گیا ہوں اور آگے اب پاکستان جا رہا ہوں, یہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے, باقی صوبوں میں تو کسی میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں. کنٹینر یہاں لگا دے گئے ہیں, یہاں پہ اپنا رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کو پکڑا گیا ہے, اور پھر وہ جو ہے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. اوپر سر پہ الیکشن کھڑا ہے, اور کون سی غیر قانونی کام کیا ہے انہوں نے جو ان کے راستے کو روکا جا رہا ہے. تو یہ اپنا میں سمجھتا ہوں کہ کیا کریڈیبلٹی ان الیکشنز کی. ہم تو الیکشنز لڑ رہے ہیں, ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے نہیں ہٹے. اور آج میں اپنی وہاں وائف کو وہاں پہ اس ہسپتال میں چھوڑ کے انکانشیس چھوڑ کے میں یہاں پاکستان آ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ مجھے 10 سال کی قید کی سزا دی ہوئی ہے, مریم کو 8 سال قید کی سزا دی ہوئی ہے. تو میں کسی مقصد کے لیے آ رہا ہوں, اور قوم کو اس مقصد کا پتہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میڈیا کو بھی پھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا سٹینڈ لینا چاہیے. میڈیا کو بھی اپنا ڈر کے گھبرانا نہیں چاہیے. میڈیا آگے بڑھے. قوم ماشاءاللہ اب بڑھ رہی ہے, اور قوم اگر نظر نہ آتی کہ بڑھتی ہوئی تو یہ اپنا اس طرح کی پابندیاں لگاتے, یہ ہمارے امیدواروں کو اس طرح سے توڑتے, یہ وفاداریاں تبدیل کرواتے, یہ سمبل جو ہے یہ شیر سے جیب کی طرف منتقل کراتے. ان کو معلوم ہے سب کچھ, اور یہ جو کر رہے ہیں وہ آپ بھی ان کو جانتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ اب آپ لوگ میڈیا بھی ذرا حوصلہ پیدا کریں. اگر 8-10 چینل ہی سٹینڈ لے لیں, یا بے شک 5 ہی لے لیں, دیکھیں صورتحال تبدیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. جی وعلیکم السلام آسما شرازی صاحبہ وہ
कल का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। जी सर, वो नहीं चल सका, लेकिन बीबीसी और पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत रिवाइव किया है। तो उसके ऊपर काफी हम सब जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और सब लोग एक बयान इशू कर रहे हैं बहुत जल्द, और हम उसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ट्विटर एंड सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपका चैनल चला देता तो चल जाता। जी सर, अभी हम यही जाके इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि उसको हम जरूर चलाएं। थोड़ा सा कैमरा की तरफ से ये आया कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे थ्रेड्स अभी जो है वो दिए गए हैं। ये तो आसमान पर ये तो फिर स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप भी समझते हैं जी कि ये 70 साल तारीख हमारी बदलनी चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप स्टैंड लें। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अब जब बदलने का वक्त आया है, मुल्क की तारीख बदलने का वक्त आया है, तो फिर मीडिया जो है वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नज़र आता है। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। डरने की क्या बात है? अब डर उतारें, अब अपना डर उतारें। कौम ने भी डर उतार दिया, आप भी उतारें। अब सब मिलकर अपना इस मुल्क को बदलें, इसकी तारीख को बदलें। वरना 70 साल तारीख हमारी, तो उसी ने आज ये दिन दिखाया पूरी कौम को। तो अब ये मेरा ख्याल है कि जबकि एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट्स आ गए हैं, और ये बिल्कुल तब्दीली बिल्कुल सामने नज़र आती है, तो फिर आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अजहर साहब, क्या हाल चाल है? यहाँ पे हैं और वो यही से आपको हिरासत में लेना चाह रहे हैं, गुजारिश है कि आपको एयरपोर्ट के लाहौर पे गिरफ्तार किया जाए। तो क्या आप यहाँ गिरफ्तारी करने के लिए तैयार हैं या लाहौर एयरपोर्ट पे जाके अपना अजहर जावेद साहब गिरफ्तार मुझे यहाँ से करते हैं या वो लाहौर पहुँच के करते हैं, मैं तैयार हूँ, हर एवेंचुअलिटी के लिए तैयार हूँ। जो मैं खुद अपनी वाइफ को वहाँ पे जो है वो एक अपना तशवीशनाक हालत में छोड़कर मैं यहाँ जब पहुँच गया हूँ और आगे अब पाकिस्तान जा रहा हूँ, ये जो कुछ पंजाब में हो रहा है, बाकी सूबों में तो किसी में इस तरह के हालात नहीं है। कंटेनर यहाँ लगा दे गए हैं, यहाँ पे अपना रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में कारकुनों को पकड़ा गया है, और फिर वो जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है। ऊपर सर पे इलेक्शन खड़ा है, और कौन सी गैर कानूनी काम किया इन्होंने जो इनके रास्ते को रोका जा रहा है। तो ये अपना मैं समझता हूँ कि क्या क्रेडिबिलिटी इन इलेक्शंस की। हम तो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हम तो मैं समझता हूँ कि पीछे नहीं हटे। और आज मैं अपने वहाँ वाइफ को वहाँ पे उस हस्पताल में छोड़ के, अनकॉन्शियस छोड़ के मैं यहाँ पाकिस्तान आ रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे 10 साल की कैद की सज़ा दी हुई है, मरियम को 8 साल कैद की सज़ा दी हुई है। तो मैं किसी मकसद के लिए आ रहा हूँ, और कौम को उस मकसद का पता है। और मैं ये समझता हूँ कि आज मीडिया को भी फिर जो है ना वो थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। मीडिया को भी अपना डर के घबराना नहीं चाहिए। मीडिया आगे बढ़े। कौम माशाल्लाह अब बढ़ रही है, और कौम अगर नज़र ना आती कि बढ़ती हुई, तो ये अपना इस तरह की पाबंदियां लगाते, ये हमारे उम्मीदवारों को इस तरह से तोड़ते, ये वफादारियां तब्दील करवाते, ये सिंबल जो है ये शेर से जीप की तरफ मुंतकिल कराते। इनको मालूम है सब कुछ, और ये जो कर रहे हैं वो आप भी उनको जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ मलिक साहब कि अब आप लोग मीडिया भी ज़रा हौसला पैदा करें। अगर 8-10 चैनल ही स्टैंड ले लें, या बेशक 5 ही ले लें, देखें सूरत हाल तब्दील होती है नहीं होती है। जी वालेकुम सलाम। आसमा शराजी साहबा, वो कल का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। जी सर, वो नहीं चल सका,
लेकिन बीबीसी और पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत हाइप किया है, तो उसके ऊपर काफी हम सब जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और सब लोग एक बयान इशू कर रहे हैं बहुत जल्द, और हम उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ट्विटर एंड सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपका चैनल चला देता तो चल जाता। जी सर, अभी हम यही जाके इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि उसको हम जरूर चलाएं। थोड़ा सा कैमरा की तरफ से ये आया कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे ट्रेंड सभी ट्रेंड दिए गए हैं। ये तो आसमान पर ये तो फिर स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप भी समझते हैं जी कि ये 70 साल तारीख हमारी बदलनी चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप स्टैंड लें। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अब जब बदलने का वक्त आया है, मुल्क की तारीख बदलने का वक्त आया है, तो फिर मीडिया जो है वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नज़र आता है। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। डरने की क्या बात है? अब डर उतारें, अब अपना डर उतारें। कौम ने भी डर उतार दिया, आप भी उतारें, अब सब मिलकर अपना इस मुल्क को बदलें, इसकी तारीख को बदलें। वरना 70 साल तारीख हमारी, तो उसी ने आज ये दिन दिखाया है पूरी कौम को। तो अब ये मेरा ख्याल है कि जबकि एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट्स आ गए हैं, और ये बिल्कुल तब्दीली बिल्कुल सामने नज़र आती है, तो फिर आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अजहर साहब, क्या हाल चाल है? अपना अजहर जावेद साहब गिरफ्तार मुझे यहाँ से करते हैं या वो लाहौर पहुँच के करते हैं, मैं तैयार हूँ, हर एवेंचुअलिटी के लिए तैयार हूँ। जो मैं खुद अपनी वाइफ को वहाँ पे जो है वो एक अपना तशवीशनाक हालत में छोड़कर मैं यहाँ जब पहुँच गया हूँ और आगे अब पाकिस्तान जा रहा हूँ, ये जो कुछ पंजाब में हो रहा है, बाकी सूबों में तो किसी में इस तरह के हालात नहीं है। कंटेनर यहाँ लगा दे गए हैं, यहाँ पे अपना रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में कारकुनों को पकड़ा गया है, और फिर वो जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है। ऊपर सर पे इलेक्शन खड़ा है, और कौन सी गैर कानूनी काम किया इन्होंने जो इनके रास्ते को रोका जा रहा है। तो ये अपना मैं समझता हूँ कि क्या क्रेडिबिलिटी इन इलेक्शंस की। हम तो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हम तो मैं समझता हूँ कि पीछे नहीं हटे। और आज मैं अपने वहाँ वाइफ को वहाँ पे उस हस्पताल में छोड़ के, अनकॉन्शियस छोड़ के मैं यहाँ पाकिस्तान आ रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे 10 साल की कैद की सज़ा दी हुई है, मरियम को 8 साल कैद की सज़ा दी हुई है। तो मैं किसी मकसद के लिए आ रहा हूँ, और कौम को उस मकसद का पता है। और मैं ये समझता हूँ कि आज मीडिया को भी फिर जो है ना वो थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। मीडिया को भी अपना डर के घबराना नहीं चाहिए। मीडिया आगे बढ़े, कौम माशाल्लाह अब बढ़ रही है, और कौम अगर नज़र ना आती कि बढ़ती हुई, तो ये अपना इस तरह की पाबंदियाँ लगाते, ये हमारे उम्मीदवारों को इस तरह से तोड़ते, ये वफादारियाँ तब्दील करवाते, ये सिंबल जो है ये शेर से जीप की तरफ मुंतकिल कराते। इनको मालूम है सब कुछ, और ये जो कर रहे हैं वो आप भी उनको जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ मलिक साहब कि अब आप लोग मीडिया भी ज़रा हौसला पैदा करें। अगर 8-10 चैनल ही स्टैंड ले लें, या बेशक 5 ही ले लें, देखें सूरत हाल तब्दील होती है नहीं होती है।